اسلام ایپ کو پلے اسٹور سے ضرور ڈاؤن لوڈ کیجیے اور شیئر کیجیے۔ ہم ابھی بات کرا رہے ہیں اعتراض کو اپنے نا ان پر وہ بتائیں گے۔ گاڑی دے رہے ہیں سمجھ میں آ رہا ہے کتنا بات ہے۔ ہلو ہاں بولیے بولیے، سن رہا ہوں میں۔ ایک منٹ بات سن لو بات۔ ہاں سن رہا ہوں۔ ہلو ہاں جی، کون؟ السلام علیکم۔ کون؟ کیا نام ہے آپ کا؟ ہمارا نام شکیل احمد ہے۔ اچھا، تو کون سے مکتبہ فکر سے تعلق ہے؟ دیوبندی ہیں؟ ہم نہیں، مطلب ہم دیوبندی والی بات کر رہے ہیں۔ ابھی جو اس دن تقریر ہو رہی تھی یہاں پر مسجد کے اندر، ہاں تو بتا رہے تھے کہ کہیں پر جلوس، اپنے حدیث میں کہیں پر جلوس کا ذکر ہی نہیں کیا گیا ہے۔ یہ ہم نے کہا یہ جلوس جو مناتے ہیں، یہ عید میلاد النبی مناتے ہیں جو لوگ، یہ سب خرافات ہے، یہ سب بیکار ہے، یہ ہے بتا رہے تھے۔ تو ابھی ہم نے کہا آپ مطلب بات کر رہے تھے ان سے، تو انہوں نے آپ کو نمبر لگا دیا۔ ٹھیک ہے، تو بتائیے ایسا مطلب جو ہے، مطلب جو کیسے، مطلب اس کا تعلق وہاں سے ہے حدیث سے؟ مطلب دیکھیے بہت سارے عمل ایسے ہیں جو دین میں نیا کام ہے، ٹھیک ہے نا، لیکن اس کو مستحب آگے ہے۔ یہ حدیث سے بھی ثابت ہے، مفسرین کی تفسیر سے بھی ثابت ہے، ٹھیک ہے نا، بہت سارے اقوال ثابت ہے۔ جیسے کہ میں حدیث پیش کر دیتا ہوں، اور ایک کی حدیث کئی کتابوں میں موجود ہے، اس کے بعد پھر میں آگے بات لے کے چلتا ہوں، ٹھیک ہے نا۔ پھر میں آگے جلوس کی بات کروں گا، ٹھیک ہے نا۔ جلوس کو جو ہے مستحب عمل مانتے ہیں۔ کون سا عمل مانتے ہیں؟ مستحب عمل۔ ہاں، مستحب یعنی ایک اچھا عمل، ٹھیک ہے نا۔ جلوس کو یہ چیز دکھاتے ہیں کہ آج ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہوئی ہے، تو اس کو ہم لوگوں کو دکھاتے ہیں کہ تم بھی آؤ، ٹھیک ہے نا، اسلام کے دامن میں ہو، ٹھیک ہے۔ اب میں حدیث شریف آپ کو بتا دیتا ہوں کہ اچھے کام کے تعلق سے حدیث نمبر بھی بتا دیتا ہوں آپ کو، ٹھیک ہے نا۔ آپ چاہے چیک کر لیں، کتابوں میں بھی حدیث ہر جگہ کئی کتابوں میں مل جائے گی، ٹھیک ہے نا۔ کیونکہ میں حدیث پڑھ کے بتا دیتا ہوں۔ دیکھیے میرے پاس کتاب ہے، ایک منٹ حوالہ نکال لوں۔ ہاں، اب بد مذہب کے تعلق سے بھی وہ میں حوالہ دیتا ہوں آپ کو، ٹھیک ہے نا۔ ہاں دیکھیے پہلے اس کا حوالہ لیجیے۔ دیکھیے حدیث ہے سنن ابن ماجہ، ٹھیک ہے نا، کیا ستہ میں کتاب موجود ہے۔ آپ کو معلوم ہے، نام سنا کبھی سنن ابن ماجہ کتاب کا؟ جیسے بخاری شریف، ترمذی شریف، بخاری، مسلم، ترمذی، سنن ابن ماجہ، یہ سب کتابوں کے نام سنے آپ نے؟ ہاں، تو یہ چوتھے نمبر کتاب آتی ہے سنن ابن ماجہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث موجود ہے، حدیث نمبر 207 نمبر میں۔ حوالہ ان نمبر پہ بھیج دیتا ہوں، آپ پڑھ لیجئے، پڑھوا لیجئے گا، ٹھیک ہے نا۔ تو باب امام ابن ماجہ رحمہ اللہ تعالیٰ نے بانا ہے کہ باب من سنہ سنہ حسنۃ او سیئۃ، ٹھیک ہے نا۔ حضرت ابو خفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس آدمی نے کوئی اچھا طریقہ رائج کیا، کیا کیا؟ جس آدمی نے کوئی اچھا طریقہ رائج کیا اور اس کی وفات کے بعد اس پر عمل کیا جا رہا ہے، تو اس عمل کرنے والے کو بھی ثواب ملے گا، اور جس نے ایجاد کیا اس کو بھی ثواب ملے گا۔ حدیث نمبر 207، اور یہی حدیث صحیح مسلم میں 6800، اور بھی یہ کتاب میں 6 جگہ حدیث موجود ہے، اور بھی بہت سارے کئی جگہ پر کتاب میں موجود ہے، ٹھیک ہے۔ تو دین میں نیا کام رائج کرنے کے تعلق سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرما دیا ہے، ٹھیک ہے، کہ نیا کام، ہاں عقیدے میں کوئی نیا کام نہیں ایجاد کر سکتے۔ عقیدے کے تعلق سے، احکام کے تعلق سے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا ہے وہ جس کرنا ہے۔ مسئلے مسائل میں تو اختلاف ہوتے رہتے ہیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا واضح فرمان ہے کہ میرے امت کے علماء کا جو ہے اختلاف جو ہے رحمت ہے۔ تو اختلاف کس پر ہوگا؟ جب نئے نئے مسئلے مسائل چھڑیں گے تبھی تو اختلاف ہوگا۔ اب جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو بات فرما رہے اس پر لوگ اختلاف کرے گا تو گمراہ ہو جائے گا، ہے نا۔ یہاں تو اس تعلق سے حدیث شریف میں نے بتا دیا آپ کو۔ نیا کام کے تعلق سے بہت ساری حدیث شریف موجود ہے، اور دیکھیے بد مذہب کے تعلق سے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا ہے وہ بھی حدیث میں آپ کو بتا دیتا ہوں، سنیے گا، ٹھیک ہے۔ سنن ابن ماجہ کی ہی کتاب ہے، حدیث نمبر 93 ہے، ٹھیک ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، یعنی اگر بد مذہب بیمار ہو جائے تو، ٹھیک ہے، کیا ہے؟ اگر بد مذہب بیمار پڑے تو اس کے یہاں نہ جاؤ، اگر وہ مر جائے تو اس کے جنازے پر حاضر نہ ہو، اور جب انہیں معلوم ہو جائے تو اسلام ان کو، جب وہ تمہیں ملے تو ان کو سلام نہ کرو اور ان کے پاس نہ بیٹھو، ٹھیک ہے نا، ان کے ساتھ پانی نہ پیو، ان کے ساتھ کھانا نہ کھاؤ، ان کے شادی میں بھی نہ جاؤ،
ان के बाद उनके जनाजे की नमाज भी ना पढ़ो और उनके साथ नमाज ना पढ़ो। ये सुनने इब्ने माजा की सही हदीस है, वो सब हवाले में भेज देता हूँ, आप पढ़ लीजिएगा, पढ़वा लीजिएगा। अगर हम किसी को बदमज़हब मानते हैं, उसके पीछे नमाज या उसकी नमाज जनाजा हम नहीं पढ़ते हैं, तो ये हदीस शरीफ में बिल्कुल वाज़ेह हदीस मौजूद है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना फरमाया। अब जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मना करे, उसके खिलाफ करे कोई, तो गुमराह है कि नहीं है? अब रही बात ये जुलूस के ताल्लुक से, तो जुलूस एक ऐसा अमल है, जुलूस जो निकालना एक मुस्ताहब अच्छा अमल है। अगर कुछ करता है तो ठीक है, वरना हम किसी को ये नहीं कहते कि तुम जुलूस निकालो ही। हाँ, अगर कोई एतराज करता है तो हम कहते हैं कि ये मुस्ताहब अमल है, अच्छा अमल है, लोग निकलते हैं, लोग देखते हैं कि भाई हम आज हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश है। ठीक है, और कुछ बात करना चाहते हैं, बताइए। नहीं और करेंगे बात। हेलो, हाँ पूछिए, आपको क्या बात है? हाँ बोलिए। ये बता रहे थे कि इन लोगों में शादी करना, इनके पीछे नमाज पढ़ना, इनको बता दीजिए कैसा है। हाँ बता दिया मैंने, हदीस शरीफ बता दिया, वो हदीस मैंने व्हाट्सएप पे आपको भेजा। हाँ, इनके यहाँ शादी करना कैसा है ये बता दीजिए। हाँ, ये देवबंदी के यहाँ शादी करना, वो सारी चीज वो हदीस मैंने पढ़ के बता दिया, और मैं आपको व्हाट्सएप नंबर पे भेजता हूँ। ठीक है, अरबी में भी उर्दू में, उनको पढ़ के सुना दीजिएगा। बता दीजिए। हाँ, पढ़ के सुनाइए, पूछो उनसे, पढ़ के सुनाइए ना, पढ़ के सुनाइए ना जी हजरत। इनकी गुस्ताखियाँ हजरत बता दीजिए अब इनकी किताबों से। किनकी? देवबंदियों की। हाँ, देवबंदियों की तो बहुत सारी गुस्ताखियाँ, 2-4 पढ़ के बता देता हूँ, ठीक है ना। बहुत सारी गुस्ताखियाँ भरी पड़ी है, 2-4 मैं पढ़ के सुना देता हूँ, ठीक है ना। रुकिएगा, अभी 2-4 पढ़ के, और किताब पढ़ के बता देता हूँ, हवाला भी मैं किताब का लगा देता हूँ, भेज देता हूँ, ठीक है ना। अब देखिए, जैसे कि हिफ्जुल ईमान किताब का नाम सुनिए कोई? अशरफ अली थानवी की किताब है मेरे पास, है ना जी है। वो आपने उनको दिखाई? अशरफ अली थानवी ये नहीं देखेंगे, आपसे खाली सुन लेंगे ये। चलो ठीक है, मैं पढ़ के बता देता हूँ, ठीक है ना। मैं पढ़ के बता देता हूँ, उनको नहीं देखना है तो कोई दिक्कत नहीं, आप कम से कम एक बार तहकीक कर ले, किसी के पीछे अंधे होकर नहीं जाया जाता, ठीक है ना। आपको अपना हिसाब, अपने अमाल का हिसाब देना है, उनको अपने अमाल का हिसाब देना, हमको अपने अमाल का हिसाब देना, ठीक है ना। किसी के पीछे अंधे होंगे तो ऐसे तरीके से, अगर वो गुमराह है तो आप भी गुमराह हो जाएंगे, ठीक है ना। अगर वो काफिर है तो आप भी उसके पीछे काफिर हो जाएंगे। अब देखिए, हिफ्जुल ईमान की इबारत में आपको पढ़ के सुना देता हूँ कि हिफ्जुल ईमान की इबारत में क्या लिखा। बहुत सारे कुफ्रिया अकीदे हैं जो मैं आपको एक एक करके बता सकता हूँ, ठीक है ना। अब देखिए, हिफ्जुल ईमान की किताब सफ़ा नंबर 15 पर लिखा है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ताल्लुक से, इल्म गैब के ताल्लुक से बात करते हुए अशरफ अली थानवी ने लिखा है कि फिर ये कि आपकी दाते मुकद्दसा पर इल्म गैब का हुक्म क्या जाना। किसके दाते मुकद्दसा पर? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के, ठीक है। आपकी दाते मुकद्दसा पर इल्म गैब का हुक्म किया जाना, अगर बकल ज़ैद सही हो तो दरियात तलब अम्र ये है कि इस गैब से मुराद कुल गैब है या बात गैब है। हम तो बात गैब मानते, कुल गैब तो मानते नहीं, है ना। कुल गैब है या बात गैब है? अगर बाद उलूम गैब मुराद है तो इसमें हुजूर ही की क्या तकसीर। ऐसा इल्म गैब तो ज़ैद उमर बल्कि हर सभी मजनू बल्कि हर जमी हैवानात व बाइम के लिए भी हासिल है। जमी मजनू, आप समझे, मैं इसका तर्जुमा करके बताऊं। ज़ैद उमर बकर हर सभी मजनू, पागल को सभी मजनू किसे कहते हैं? पागल को भी है, बच्चे को भी हासिल है। तो जो ऐसा अकीदा लोगों को बताए, जो ऐसा मुजद्दिद लोगों को ऐसा अकीदा दे कि ऐसा इल्म गैब तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को है जैसा कि बच्चों, पागलों, जानवरों को भी हासिल है। क्या उस मुजद्दिद के पीछे आप चलना चाहते हैं? बता दीजिए। अभी तो मेरे पास बहुत सारी चीजें हैं, मैं एक ही पढ़ के बता रहा हूँ, बताइए, बताएं, आप बताएं। मैं तो बहुत बात बता रही। हाँ बोलिए। देवबंदी करना सही नहीं है। क्या नहीं? अगर वो जो है हम अपने में ले आते हैं, उसको जो है जब हम कर रहे वो करने लगे, उसमें भी बुराई। मतलब मैं समझा नहीं, कैसे बोलिए तो? जैसे मतलब देवबंदी बिरादरी की लड़की से हम शादी करते हैं तो उसको अपने में ले आते हैं, जो हम करेंगे वो करेगी घर में। देखिए, इसमें बहुत सारी चीजें, ये देखिए मसले की बात है, बहुत सारी चीजें, जैसे कि देवबंदी के वहाँ भी हम हर देवबंदी को काफी नहीं कहते, हर देवबंदी काफी नहीं है। बहुत लोग अपने अकाइद से, अपने अकाबिरीन के अकाइद से लाइल में जानते नहीं, ठीक है ना, तो उनको हम काफी नहीं कहते, उनको बस इस हद तक गुमराह कहते हैं,
ठीक है ना। नहीं, बस आप हमें इतना सवाल ले दीजिए, ज्यादा आपको तकलीफ नहीं देंगे। जैसे ना देवबंदी बिरादरी लड़की के साथ होगी, वो ले आएगी, मेरे यहाँ से बरेली तरीका चलता है, तो वो वही तरीका अपनाएगी जो अरे, तो उसमें कोई बुराई है? जी जी ठीक है, ठीक है, लेकिन वो अपने गंदे अकायद को जब तक अगर वो उसका अकीदा जैसे कि इसके काबिलिन का है अकीदा, उस अकीदे पर है, ठीक है ना, तो फिर उसका निकाह जायज़ ही नहीं होगा जब तक अपने वो उस तरीके को अपने वो उस अकीदे से तौबा ना करे, ठीक है ना, तब तक उसका निकाह होगा ही नहीं। हाँ, नहीं होगा निकाह ना, अगर वो तरीके अकीदे पर चलती है तो। नहीं, ठीक है चल रहा है, लेकिन जैसे उनके अकीदे देखिए, अकायद के ताल्लुक से जितने भी दुनिया में गुमराह फिरके गए, चाहे काफिर हुए चाहे कुछ हुए, सब ने अकायद का इनकार किया कि कोई ना कोई अकीदे का इनकार किया, ठीक है ना। जैसे कि सबसे पहले नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के विसाले ज़ाहिरी के बाद जो सबसे पहले फिरका निकला था वो मुनकिरीन ज़कात का था। किसका था? ज़कात का मुनकिर निकला रहे फिरका। अच्छा, ज़कात का मुनकिर हो गया था वो, ठीक है ना, तो कुरान की आयत का इनकार करने वाला काफिर हो गया। इसी तरह बहुत सारे मुर्जिया है, जहनिया है, बहुत सारे ऐसे अहले कुरान हैं, तो ये सब किसी न किसी अकीदे का इनकार करते हैं। जैसे कि अहले कुरान जो है हदीस को नहीं मानते। नहीं ठीक, आप हमें केवल एक सवाल जवाब दे दीजिए। जैसे मैं देवबंदी बिरादरी चिल्ला हूँ, मैं बरेलवी हूँ, तो वो सब यहाँ अगर करने लगे तब उसमें भी कोई बुराई है? वो करेगी जो हम कर रहे हैं वो करेगी। हाँ जी, मतलब ये पूरा करना ही चाहते हैं उस पर, मतलब अड़े हुए हैं। हाँ, इनको सुन्नी नहीं मिल रही कहीं। अच्छा, नहीं मिल रही है। मसला ये है, मतलब सबसे दोस्ती का हाथ बढ़ाना है, ये है। अब दुनिया देखेगी उनके साथ खाना पीना शादियों में होगा, बताओ, देखो तो तुम कर लोगे, ठीक है। जो औलादे पैदा होंगी उनके नाना तो देवबंदी होंगे, दादा देवबंदी होंगे, आप बताइए इनको। मैंने तो नाना उनका परिवार तो वही कहलाया जाएगा। तो मैंने तो देखो उनके हदीस शरीफ के ताल्लुक से हवाला दे दिया, ठीक है ना। अब देखिए उनकी बीवी अगर उनके घर आती है, अगर उनकी बीवी उनके घर से कतई ताल्लुक कर लेती है, ठीक है, कहती है कि जब तक तौबा नहीं करते तब तक उनका रिश्ता नहीं कहलाएगा। जैसे कि बहुत सारे साहबा इकराम ने भी निकाह वो किया। लड़की अपना घर छोड़ना पड़ी है उसको, बिल्कुल उसको तौबा करना पड़ेगा तब अपनी बनाओ उसको। तौबा करना पड़ेगा, बता रहे हैं, तौबा करना पड़ेगा। उसके बाद अगर वो जानती नहीं है तो फिर मामला अलग है। अगर जानती है अपने अकाबिर के गंदे अकायद को तो उसको जरूर तौबा करना पड़ेगा, क्योंकि ये छोटा मोटा मसला नहीं है, बहुत बड़ा मसला है, ठीक है ना। ये ईमान का मसला है, इसीलिए तो बताते हैं हल्के में सब लिया करते हैं। तो वही ना कह रहे हैं, ये बहुत ही भारी अकीदे में से है, ठीक है। नमाज रोजा किसी का इख्तिलाफ नहीं, वो हर लोग करता है, ठीक है। अहले कुरान जो हदीस को भी इनकार करते हैं वो भी नमाज पढ़ते हैं, ठीक है ना। हदीस का इनकार करने वाले अहले कुरान वो भी नमाज पढ़ते हैं, इस बात नहीं है, लेकिन हदीस को छोड़ते हैं। शिया को देख लीजिए, वो अहले बैत को मानते हैं लेकिन साहबा इकराम को नहीं मानते, ठीक है ना। 4-5 साहबा इकराम को मानते, बाकी को नहीं मानते। इसी तरीके से हर लोग, अगर आप शिया के लड़की शादी करेंगे, अगर वो साहबा इकराम को बुरा भला बोलेगी या उसके घर वाले बोलेंगे, क्या आप शादी करेंगे उनको? बताइए। जी, हम तो यही समझा रहे थे आपसे। चलिए ठीक है सर, तो हो गई बात, बस इतना ही बताना था। समझ गए ना वो? और कुछ हो तो फोन करिएगा, ठीक है। जी ठीक है, अस्सलाम वालेकुम।